नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। जो एक पैकेजिंग है, आजकल लोग कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड है, वो ब्राउन होती नहीं है, राइट, सिर्फ कलर होता है ब्राउन, करेक्ट, है ना। पीछे का देखो पैकेजिंग के तो क्या लिखा होता है, इट्स एन आई ओपनर थिंग फॉर यस, अस। सो आपने कहा कि जो भी आप चीज़ दे रहे हो इट्स प्योर, जो भी है असली है। राइट। व्हाट डू यू हैव टू से टू दोज ब्रांड्स जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कंज्यूमर्स के साथ, मतलब ऐसा या क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज दे प्रॉफिट्स, बिजनेस, ये चल रहा है। सी जब आप इसके दो जवाब हैं। एक तो है दैट ऑफ कोर्स देयर आर ब्रांड्स की जो अनहेल्दी बेच रहे हैं बिकॉज अनहेल्दी बिक रहा है एंड दे फाइंड इट ईजियर एंड चीपर। कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत सारी शुगर डाल दोगे तो इट विल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, तो आपको वो ईजी लग रहा है कि आपने डाल दिया, दिस विल लास्ट मी फॉर एवर, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द कंज्यूमर इज फीलिंग. Now, there are some chemicals that sometimes bigger brands have to put when they want to make a mass product because the supply chain is not that great, because it will be handled in various ways to, and they want it to last a certain way, so that at the end of the day when my end consumer is having the product, they can get the same thing that I intended for them to get. So now those kind of things, if they are in a certain, I'm not saying they're not bad, they are bad for you, but it's kind of a necessary evil where अगर आप घर पे नहीं बना रहे हो तो थोड़े स्टेबलाइजर्स और ये सब चीज़ें, इमल्सिफायर्स आपको डालने पड़ेंगे उन चीज़ों में. तो मे बी दोज थिंग्स वी कैन लिव विद अ लिटिल बिट. You, the general guideline should be to limit packaged food and eat fresh home food. That should always be the general guideline, and I think India may we have that privilege of being able to do that easily, where if we want to have someone come into the house, make a meal, or if we don't have those resources also, then we stick to simpler foods like stir fried veggies. आपने थोड़ा सा टोफू स्क्रैम्बल कर लिया, 5 मिनट लगेंगे. You can make things in bigger batches. You can make your beans and whatever in bigger batches, and you can get good quality ingredients and make it. The other thing is जो बहुत सारे sugars ऐड हो रहे हैं या फिर जो false advertising वाले products हैं, those products I have a problem with, because those products, जैसे कि अगर आप energy drinks बच्चों के लिए, I don't want to name brands, but energy drinks बच्चों के लिए, there is so much sugar in it. There are these biscuits that come as glucose biscuits, पर उसमें सिर्फ चीनी है और वो मार्केट करते हैं कि it is nutrition for children. That is a very ethical debate that needs to be had, and I feel like for us also, from a food security standpoint, we need to have more stringent mechanisms through which we can remove these kind of products from the market, and we can have advertising that we force brands to advertise things that are true. And so I feel like a lot of, businesses at the core of it, whether or not that should be done is an ethical debate, but businesses at the core of it want to make money. But there has to be that nudge from the side of the government that आप ये नहीं कर सकते. जैसे आप कहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया जाओ, आपको इतने stringent methods दिखेंगे ऑफ कि अगर आप कोकोनट वाटर लिख रहे हो, तो अगर उस कोकोनट वाटर में आप, जैसे मुझे याद है कि मैं सुपरमार्केट गई थी तो उसमें कोकोनट वाटर था, तो एक था उनके यहाँ पे ऐसे नारियल नहीं मिलता कट के जैसे हमें मिलता है, तो उनके उसमें बॉटल था, बट इट्स एट 100% कोकोनट वाटर. एंड देन ऑन द नेक्स्ट आयल देयर वाज अ थिंग दैट सेड 90% कोकोनट वाटर, 10% वाटर. आर brands as honest in India? Not No. at all. वो यहाँ पे तो पूरी चीनी डाल देंगे, कोकोनट एक्सट्रैक्ट लिखा होगा और आगे मार्केट में लिखा होगा कोकोनट वाटर. Even the shakes that we get, mango, blueberry, they just have the flavor agents. They do not have 100%. actual mangoes or बिल्कुल भी anything. नहीं. Actually, this is one of the first videos that I have made on Cinnamon Kitchen's page when it was just about making people understand what is doing. That I have shown a lot of brands. पीछे मैंने ऐसे दिखाया है कि आप बोल रहे हो कि ये फुल वीट है, बट पीछे सिर्फ 5% वीट है. आप बोल रहे हो शुगर फ्री है, पीछे शुगर सब्सटीट्यूट डाला हुआ है आपने.
यू नो, तो है वो शुगर ही, पर आपने शुगर को हटा दिया उसमें, आप बोल रहे हो नो एडेड शुगर है, बट जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें तो शुगर है, और एक नॉर्मल कंज्यूमर को तो नहीं पता कि आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी नॉलेज सबके पास नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, अवेयरनेस इतनी लेवल पे नहीं है। एग्जैक्टली. सो दैट बिकम्स अ लार्जर एथिकल डिबेट वेयर आई फील लाइक देयर नीड्स टू बी अ नज फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट टू इनकरेज हेल्दियर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. जैसे एक और भी कुछ स्टडी हुई थी कि फ्राइज फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रांस में उनमें कुछ कम सोडियम होता है, या लाइक द मार्कर्स आर डिफरेंट, ऑयल और भी कुछ कम होता है, सैचुरेटेड फैट कुछ कम होता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे वो पैरामीटर्स नहीं हैं फूड को जज करने के एंड दो स्ट्रिंजेंट. सो उनको लगता है कि अगर हम और एडिक्टिव बना सकते हैं तो हम इसमें ये डाल के और एडिक्टिव बना देते हैं, लोग आके खाएंगे. सो दोज मैकेनिज्म्स एंड दोज गाइडलाइंस नीड टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट एंड दे नीड टू बी इन्फोर्स्ड. आई ऑल्सो फील कि अभी के टाइम क्या होता है, वी आर समवॉट एजुकेटेड दैट ओके ये रिफाइंड फ्लोर मतलब मैदा होता है, लाइक फ्यू वर्ड्स आर नोन टू अस. उसके बाद जो चीज़ें लिखी होती है ना इतने डेंस फॉन्ट में कि आपको पता भी नहीं होता है, वो किसी को भी नहीं पता होती है. हाँ. सो कैन देयर बी एन ऑप्शन मे बी बाय द गवर्नमेंट कि वहाँ पे QR कोड दिया जाए, आपने स्कैन किया एंड गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि ये जो लेवल A या फिर होता है ना कि एमल्सिफायर क्लास 1 क्लास 2 वो क्या है एग्जैक्टली, मुझे समझ आ जाए एक आसान सी भाषा में. सो वन वेबसाइट वेयर ऑल इन्फॉर्मेशन इज देयर, ऑलरेडी देयर, वेबसाइट इज ऑलरेडी देयर, QR नहीं है बट हाँ, QR ऐड कर दिया जाए जिससे कि आई एम नेविगेट टू दैट प्लेस एग्जैक्टली वो कि हम कहाँ से देख रहा है. सकें क्या इंग्रेडिएंट्स. इनफैक्ट आप अगर ग्लूटेन फ्री मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो आप, आई एम श्योर ये आप रागी, ज्वार, बाजरा यही यूज करते हो, एंड ये इंडियन कल्चर में कब से है, एंड बट ये अब कूल बन गया. इफ आई से कि मैं बाजरा की रोटी खा रही हूँ तो एवरीबॉडी विल से अरे कौन कितने कहाँ से ऑर्थोडॉक्स है, कौन कितने पुराने जमाने के. बट इफ आई से फॉक्सटेल खा रहे हैं, फिंगर मिलेट खा रहे हैं, तो आई थिंक दैट बिकम्स अ न्यू कूल. तो आजकल में शायद ग्लूटेन फ्री का लोगों में ट्रेंड आ चुका है, हम तो ग्लूटेन फ्री खा रहे हैं. सो आई डिड इट हेल्प यू इन द बिजनेस? आई एम श्योर इट वाज अ गुड मूव वैसे. Yeah, see, the thing is with us, I always have said this exact same thing that you are saying, that millets are so, most of our baking knowledge of gluten free comes from the West, where what they do is that they use refined flour that is also gluten free, or they will use oat flour, or they will use quinoa flour, one of these. But in India, that's how actually that formed the basis of my recipes also, because I took recipe inspiration from there and then I changed it to millets, because I found that India just has such a rich culture of millets. They grow in soil that maybe is not that good quality. It's very good in minerals and a lot of essential things that you may need. It's naturally gluten free, तो आप कुछ remove नहीं कर रहे हो through a chemical process. एंड आपको जो एंड रिजल्ट मिल रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट, बिकॉज ऑल्सो मिलेट्स हैव अ कैरेक्टर ऑफ देयर ओन. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बनाते बनाते देखा कि मिलेट जो एमरंथ है, राजगिरा, उसका टेस्ट चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज इट्स गॉट अ नेचुरली नटी टेस्ट. तो अब हम एमरंथ को ककाओ पेयरिंग्स में केक्स, चॉकलेट केक्स के साथ बहुत अच्छे से हम पेयर कर पाते हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू डिस्कवर, बट द आइडिया इज दैट अगर आपको ये करना है, सी द एंड रिजल्ट इज अगर वो कूल बन रहा है तो इट्स गेटिंग अडॉप्टेड. सो आई फील लाइक द आई शुड बी ऑन द प्राइज, कि इट इज़ गेटिंग अडॉप्टेड. सो फॉर अस ऑल्सो हम उसे कूल बना रहे हैं थ्रू in our interpretation of these traditional millets into modern desserts and to cater to a modern palate. सो हम जनरली इंडिया में देखते हैं तो लोग दिन में करीब 3-4 कप चाय तो आराम से पीते हैं, एंड चाय पीते हैं तो उसमें चीनी भी डलती है. एंड नाउ सिंस इंडिया इज़ बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, तो शुगर के क्या ऑल्टरनेटिव्स आप सजेस्ट करते हो फॉर अ पर्सन टू बिकम हेल्दी? या एक्चुअली दैट्स वेरी रेलिवेंट. क्या होता है कि हर एक चीज़ का हम शुगर का स्पाइक कैसे मेजर करते हैं, वो एक यूनिट होता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स से. बेसिकली आपको कितना ज़्यादा शुगर स्पाइक आ रहा है कोई चीज़ खाने से. तो शुगर जो होती है उसका काफ़ी हाई होता है, 85 के आसपास होता है, जो आपकी रिफाइंड वाइट चीनी होती है. सबसे कम अगर आपको चाहिए कि मुझे टेस्ट में भी फ़र्क ना आए, क्योंकि एक चाय ऐसी चीज़ होती है बहुत स्टेपल है, मैं नहीं चाहती मेरे टेस्ट में फ़र्क आए, तो आप कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हैं. अमंगस्ट शुगर्स उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे कम है, इट्स अराउंड 55.
ठीक है। सो आप अगर कोकोनट शुगर अपनी चीनी अपने चाय में डालेंगे तो आपको टेस्ट में कोई कोकोनट का फ्लेवर नहीं आता। कोकोनट शुगर में आपको कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं लगेगा, आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। स्टीविया थोड़ा लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है, लॉन्ग टर्म स्टडीज़ सजेस्ट करती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो नए रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। बट मैं पर्सनली, मेरा ये ओपिनियन है कि आप अगर स्टीविया भी लें तो वो एक शुगर से बेटर है। इन चीज़ों में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि काफ़ी लॉबिंग भी होती है। तो अगर कोई चीनी की इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि वो कभी आपको पेपर्स पब्लिश करके ही देगी कि स्टीविया और ये मत लो, ये हार्मफुल है, एंड अदरवाइज सो आवर वे ऑफ ईटिंग इतना ज़्यादा लोग इसीलिए कंफ्यूज हो चुके हैं अब इस चीज़ के बारे में, और सबको लगता है मुझे नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बन जाता है कि ओट्स सबसे हेल्दी चीज़ है, आप ओट्स खाइए। फिर कुछ टाइम बाद बोलते हैं अरे ओट्स में तो कार्ब्स हैं, आप वो मत खाइए। फिर आपको बोलते हैं कि आप डेट्स वाली ये प्रोटीन बार खाइए, ये आपको एनर्जी देगी। उसके बाद बोलते हैं ये भी तो चीनी है, ये भी मत खाइए। तो खाए क्या, मतलब वो एक एक चीज़ ना ऐसे रिड्यूस होती जाती है। तो आई फील लाइक ओवरऑल अगर मैं एक गाइडलाइन बताना चाहूँ किसी को कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं, तो आप बेसिक गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्टेन टाइप की डाइट पे जाना ज़रूरी है। आप पैकेज फूड्स कम खाइए, आप चीनी कम लीजिए, आपका सोर्स ऑफ शुगर कैन बी बेटर, है ना। आपको एकदम एलिमिनेट करके रेडिकल प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली हमने ये देखा है कि जिनको PCOS है, किसी भी तरीके का गट इन्फ्लेमेशन है, उनके लिए ग्लूटेन हटाना बहुत अच्छा रहता है अपनी डाइट से। या अगर आप ग्लूटेन खा भी रहे हैं तो उसको एक मील में रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 3 मील ही ग्लूटेन के आसपास तो एक्सेस हो जाता है। प्लस अगर मैं थोड़ा डीप जाऊँ इस चीज़ में, तो इंडिया जो हमारा पहला आटा होता था, अब हमारा आटा वो नहीं है। हमारा जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसमें ग्लूटेन का स्ट्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो उतना जो स्ट्रॉन्ग ग्लूटेन का स्ट्रेन है वो हमें हार्म कर रहा है। इसीलिए आज की डेट में ऐसे नहीं कि पहले भी तो लोग आटा खाते थे तो अब भी हम आटा खा रहे हैं तो अब तो फैट हो रहा है, क्योंकि पहले का आटा अलग है, आज का आटा अलग है। तो आप अगर अपने थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे डाइट में, थोड़ा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें कम खाएंगे, पैकेज्ड फूड्स से बेटर ऑप्शंस ऑप्ट करेंगे। अगर आप पैकेज्ड फूड भी खाएं तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, थोड़ी बेसिक नॉलेज रखें, और जनरली जितना सिंपल रखेंगे ना अपने मील्स को, कि मैंने स्टर फ्राइड कर दी जैसे मैं पहले बता रही थी, या मैंने मील प्रेपरेशन कर ली, मैंने एक सैलड दिन का खाना ही खाना है, ये मैंने सोच लिया, मैंने अपने प्रोटीन के 4 सोर्सेज बना लिए, अब मैं इनमें से खा रही हूँ, तो आपके लिए वो एक सस्टेनेबल भी हो पाएगा। क्योंकि आप एक चीज़ को पूरा छोड़ेंगे ना तो आपका वही आप सस्टेनेबल नहीं है वो। आप देखेंगे कितने लोग कीटो पे भी जाते हैं और उसके बाद वो एकदम से ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं उसके बाद। तो आई फील लाइक एक वही डाइट अच्छी रहती है जो हर तरफ से बैलेंस्ड है और जिसको आप लॉन्ग टर्म चला सकें। और एक चीज़ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है प्लेटिंग मेथड, जो हम ज़रूर देखते हैं, विच इज़ कि आपकी जो प्लेट है वो 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% प्रोटीन और 25% में फ़ैट और कार्ब्स का आपका वो आ सकता है। नॉट डिपेंडिंग ऑन आपका बॉडी गोल एंड आपकी बायो इंडिविजुअलिटी, वेदर आपको कार्ब सूट कर रहे हैं, आपको फ़ैट क्या सूट कर रहा है, आपको कौन से टाइप के वेजी सूट कर रहे हैं, आपको रॉ सूट कर रहे हैं या कुक्ड सूट कर रहे हैं, या कोई वेजीज आपको अवॉइड करने हैं, उसके हिसाब से वो चेंज हो सकती है थोड़ी प्लेटिंग मेथड, बट दैट कैन बी अ जनरल गाइडलाइन एंड पोर्शन कंट्रोल। आई थिंक इफ़ यू हैव दीज थिंग्स इन प्लेस यू आर सॉर्टेड। आपको ये नहीं है कि मैं दुनिया की सबसे हेल्दी चीनी का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के ही शुरुआत होगी, उसके सिवाय कुछ ठीक बैठेगा नहीं, आप कम खा लो। पिछले 1 साल के अंदर बहुत अवेयरनेस आई इन टर्म्स ऑफ द पैकेजिंग, कि जो लोग दिखा रहे हैं और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, बहुत गैप आता है। आई अप्रिशिएट रेवंत फूड फार्मर ऑन इंस्टाग्राम, जिन्होंने इतना रिलेटेड किया लोगों को। एंड डू यू फील दैट द बिग ब्रांड्स लाइक कैडबरी एंड ऑल, उनकी ब्रांडिंग की वजह से वो कुछ भी बेच दें 18 रुपये में तो लोग ख़रीद लेंगे, वेराज उसके की कंपोनेंट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं लोगों की हेल्थ के लिए? यार आई रियली थिंक बहुत हो गया, आई थिंक 3-4 years of like the entire debate which is happening on labels, for example, right? And I really think that when customers are asking you for high quality and questioning the ingredients, it is good for brands. It is good for brands like us also, because we are forced to actually, and
आई फील वेरी प्राउड व्हेन आवर कस्टमर से कि यार ये करो, बिकॉज they are making us better for the future of tomorrow, right? I'll give you a very interesting story on this about our we were the first in India to launch a jaggery hot chocolate. ठीक है, जैगरी हॉट चॉकलेट से पहले हमारे सिर्फ डार्क और लाइट थे. हमारे कस्टमर ने बोला कि यार बहुत टेस्टी ड्रिंक है आपकी, आप क्या मेरे को कोई ऑल्टरनेटिव के साथ दे सकते हो, राइट? कैन यू गिव मी विद लाइक अ शुगर ऑल्टरनेटिव? तो हमने कहा आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए. स्टीविया एंड ऑल मेरा काफ़ी डिबेट है, और वो मैं भी उन डिबेट्स के थोड़ा साथ हूँ. मुझे लगता है कि यार थोड़ी और रिसर्च की ज़रूरत है, और बहुत अर्ली प्रोडक्ट अडॉप्शन भी रिस्की हो जाता है कभी कभी. तो तब हमारे पास ऑप्शन थे डेट्स, जैगरी, राइट, रॉ केन शुगर, कोकोनट शुगर, सम बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू. और आई वुड से देखो हेल्दी एक बहुत ज़्यादा वेग टर्म होता है, बट आई वुड से लाइक क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स टू योर नॉर्मल शुगर. तो हमने तब एक्सपेरिमेंट करे. अभी जब कोई भी चीज़ को आप गर्म दूध में डालते हो ना, तो जैगरी भी कर्डल हो जाती है. अगर वो ऑर्गेनिक जैगरी नहीं है, वो कर्डल हो जाएगी. तो हमें, और जब हम ऑर्गेनिक जैगरी के वेंडर ढूंढ रहे थे ना, वी हैड द हार्डेस्ट टाइम. नहीं मिल रहे थे, जैगरी कर्डल हो रही थी. फाइनली जब हमने 2 वेंडर्स को क्लोज किया जो अभी हम जैगरी यूज़ करते हैं, उसके साथ हमारी जैगरी कर्डल, हॉट चॉकलेट कर्डल नहीं हो रही थी. टेस्ट में इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. ऑब्वियसली आपको इफ़ यू आर अवेयर ऑफ यू नो एंड योर टेस्ट बड्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, यू विल नो इट्स नॉट शुगर एंड इट्स अ जैगरी, right? It's not but the point I'm trying to come on here is it's the customers which asked us, and we said okay, let's do it, and let's do it together, and then we formed a community and launched India's first jaggery hot chocolate. और उसके बाद कितनी brands, and I don't think I can take the names right now, but who came with like you know premium जो chocolate brands हैं हमारी इंडिया में, bean to farm to cup, और you know bean to bar वाले. So they came up with jaggery concept in chocolate drinks. So we really take pride in like saying that you know we took the step from there. Yeah. So do you feel that आपके पास एक ऑप्शन था कि आप अपना जो प्राइस है उसको कम कर दो एंड डिस्गाइज कि पीछे क्या बेच रहे हो, nobody gets to know. एज अ कस्टमर आपने उसको कम प्राइस में कुछ भी चिपका दिया in that language, right? But you chose not to reduce your price and maintain the quality कि नहीं बॉस मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी. यार एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊंगी और आप बहुत शॉक हो जाओगे सुन के, और फिर आप सच में भी अपने आपके घर पे अगर कोई ऐसे फ्लेवर्ड ड्रिंक पड़ी होगी तो आप उसका पैकेट देखोगे. हम ना हेज़लनट हॉट चॉकलेट बना रहे थे. तो हेज़लनट हॉट चॉकलेट मतलब ये हॉट चॉकलेट, उसके ऊपर फ्लेवर होगा एक. तो इंडिया में जो बिगेस्ट फ्लेवर कंपनीज़ हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने बोला हम हेज़लनट हॉट चॉकलेट लॉन्च करें, आप मुझे सैम्पल भेजो. तो मैंने सैम्पल मंगवाया. तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सैम्पल में हेज़लनट का पाउडर आएगा, क्योंकि हेज़लनट हॉट चॉकलेट है ना, तो हेज़लनट से तो बनेगी. तो मेरे पास पैकेट आया, मैं उसे खोला, उसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर था. एंड जब मैंने उसको स्मेल किया ना, मैंने उसे गंदी चीज़ कभी स्मेल नहीं करी. इट्स अ वाइट कलर का पाउडर मेड मी क्वेश्चन. आई जस्ट ऑर्डर्ड अ हेज़लनट फ्लावर और अ हेज़लनट फ्लेवर, और उसके ऊपर लिखा हुआ था सम टेक्निकल टर्म्स और हेज़लनट फ्लेवरिंग करके. मैंने उस कंपनी को कॉल किया, मैंने कहा ये क्या है? कहते नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर है. नेचर सुन के आपको लगता है नेचुरल है, बट नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर है. और उन्होंने ना मुझे पहले कॉल पे बोला था आर्टिफिशियल नहीं है मैम, आर्टिफिशियल है. तो मैंने कहा हाँ भेजो, मुझे आर्टिफिशियल नहीं चाहिए. बट मुझे नहीं पता था नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ही है. That white color powder is there in most hazelnut flavored coffees you are having. अगर मैं वो लेती तो मेरी हेज़लनट हॉट चॉकलेट और मेरी जो नॉर्मल डार्क हॉट चॉकलेट या क्लासिक्स हैं उसमें और उसमें तो कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं होता. आज डबल प्राइस का डिफरेंस है, क्योंकि हम असली रोस्टेड टर्किश हेज़लनट्स यूज़ कर रहे हैं. मतलब हेज़लनट लेते, आपको हमारी हेज़लनट हॉट चॉकलेट को स्ट्रेन करना पड़ेगा. अब हमारे एक कस्टमर बोलते हैं यार ये पीसेस आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर ट्रेन नहीं है ना. असली खाना तो हेज़लनट है ना बॉस, तो पीसेस तो आएंगे, तो स्ट्रेन तो हेज़लनट को करना पड़ेगा. वेरी इंटरेस्टिंग राइट. कर देती मैं उसको 300 रुपये में, बट मैं उसको नहीं बेच सकती 300 रुपये, क्योंकि मैं तो असली हेज़लनट डालूंगी, क्योंकि मुझे तो वही स्वादिष्ट लगता है. अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.